Good morning, children. We will move to our next topic of chapter number 17. Okay, and the topic today we are doing is the reasons of poverty and the strategy for poverty eradication. Now, reasons of poverty in short, I have explained you in previous video. Now, we will move to the reasons explained little bit in detail. Now, first of all, insufficient development of agriculture and irrigation facilities. We know maximum population of our country is living in village areas, and then they are depending on agriculture as their main occupation. Now, what is happening in village areas? These people have not got sufficient development over there. वहाँ पे इतना facilities developed नहीं है, irrigation facilities उनको नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए they don't have the electricity facilities, canals वगैरह built up नहीं है, so they are not able to do agriculture also on a large scale, and then they are not able to earn also from this agriculture. So that's why more people are seen, those who are involved in agriculture, they are poor. Now the second one is lack of alternative employment. अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है गाँव में, तो उनके पास दूसरा कोई ज़रिया भी नहीं होता है बहुत बार कमाने के लिए, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या फिशिंग है या माइंस में काम करने के जाते हैं लोग, पर बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे ये दूसरे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है और दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन द सेकेंड ऑल्टरनेटिव. तो दैट्स वाई द पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. समवेयर द लैक ऑफ नॉलेज. बहुत बार ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लागू करती है बट इन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है कि हमको कौन सी स्कीम से कैसा फ़ायदा उठाना है, वो उनको पता नहीं होता है. बहुत बार गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं बट देन दे डोंट नो वेयर टू गो एंड अप्रोच, कहाँ पे काम ढूंढना है वो भी उनको नहीं पता होता है, या खुद का नॉलेज इतना कम होता है कि दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑल्सो. गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे ज़रिए खोल के रखे हैं पर खुद की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, so they are not able to work. They are illiterate people, that's why they are not able to work, and if they are not getting jobs then they remain poor. Increase in unproductive expenses. Now what are unproductive expenses? You will see कि बहुत सारे लोग हैं ना ऐसी चीज़ों पे खर्चा करते हैं जिनसे आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं है. Whenever we are doing the expenditure we must always think कि हमको कहाँ पे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लाइक जैसे शादी हुई या किसी फैमिली में बच्चा पैदा होता है या डेथ हो जाती है, तो दीज पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑल सच थिंग्स, एंड व्हेन अगर हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है. देखते हो ना गांव-गांव में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 12 दिन का पूजा पाठ चलता रहता है, 12 ही दिन लोग अपने रिलेटिव्स को और गाँव वालों को खाना खिलाते रहते हैं, तो उस पर कितना खर्चा हो जाता है. Even they borrow money, they take loans to do all such expenses. So this makes them more poor. अगर ये ऐसे सब customs and traditions धीरे धीरे ख़त्म होते जाएं तो poverty rate थोड़ा हमारे कंट्री में अच्छा हो जाएगा, people का standard of living increase हो जाएगा. Victim of exploitation and injustice. So many times because of illiteracy, the poor people are victim of exploitation. They are not able to get the benefits from the government schemes, they are not having the information, okay, and then they are also exploited by the landlords also. Then they don't have the knowledge of government policies and schemes. I told you बहुत इतनी schemes government ने निकाली है, इतनी policies हैं government के through, but these poor people, they are illiterate, living in a small villages, they don't know only कि whatever the government is doing for them. Ignorance of weaker section during the time of framing policies. अब कहीं पर गवर्नमेंट भी चूक जाती है. वीकर सेक्शन मतलब गरीबों के लिए जितनी पॉलिसीज़ बननी चाहिए और जितने स्कीम्स बनने चाहिए उतने नहीं बन पा रहे हैं. जितना पुअर पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में उतनी स्कीम्स लागू नहीं हो पाती हैं, और अगर गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर भी लिया है तो वो गांव-गांव पहुंच नहीं पाती हैं. बहुत बार तो करप्टेड लोग वो सब स्कीम का पैसा खुद खा जाते हैं. तो व्हाट हैपेंस, पैसा गवर्नमेंट के थ्रू आया तो सही पर लोगों के पास पहुंचता नहीं है. ओके, देन एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स डिक्रीज.
you know what happens so many times, the villagers or the farmers invest more in cash crops grow करना चाहते हैं क्योंकि cash crops में कमाई ज़्यादा होती है. तो what will happen, जो edible crops हैं, जो दूसरे crops हैं, उनका production कम हो जाता है, isn't it? और अगर production कम हो जाएगा तो again they will not be able to earn, और उसकी वजह से लोग पुअर रह जाते हैं, जो फार्मर्स हैं वो पुअर रह जाते हैं. Then static income, but expenditure on health and medicines increase. Now in our country static income मतलब इनकम तो उतनी ही रहती है, सेम इनकम है, बट दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं. हमारी हेल्थ के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर या डेली के रोज़ के जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. महंगाई बढ़ रही है इसके लिए. So what is happening? Expenditure is going on increasing, but income is stable. इनकम उतनी है, तो this will create more poverty. Change in technology and unemployment increases. Change in technology क्यों? अब जैसे पहले हाथों से काम होता था, अब धीरे धीरे मशीनरी सब जगह रिप्लेस हो गई है. जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहाँ पे एक ही आदमी काम करेगा मशीन के ऊपर, तो बाकी के 9 लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. अनएम्प्लॉयड होंगे मतलब दे विल रिमेन पुअर. ओके, तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रहा है हमारे कंट्री में. Now on one side population has increased, death rate has decreased, lifespan has increased, labor supply increased and unemployment has increased. अब क्या है हमारी कंट्री में, एक साइड हमको दिखता है कि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में अच्छी हो गई हैं, यू नो वी आर गेटिंग सो मैनी वैक्सीन्स वगैरह लग रही हैं, तो उसकी वजह से डेथ रेट हमारी कंट्री में क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया. नंबर ऑफ people dying are less compared to the past years. हमारी कंट्री का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया है, हम ज़्यादा टाइम जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़. तो अगर लोग ज़्यादा जिएंगे मतलब लोगों को काम चाहिए जीने के लिए, तो लेबर हैज़ इंक्रीज, सप्लाई ऑफ लेबर हैज़ इंक्रीज इन आवर कंट्री. और अगर लेबर ज़्यादा हो रहा है बट सामने से काम नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं है, उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ मीन्स पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग. ऑन द अदर साइड व्हाट विल सी? प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज इज डिक्रीजिंग. मैंने बताया था पीपल आर इन्वेस्टिंग इन लग्जरियस आइटम्स या कैश क्रॉप्स में इन्वेस्ट करके वो उगा रहे हैं. लग्जरियस आइटम्स में फ़ायदा बहुत होता है, प्रॉफिट बहुत होता है, तो लोग वो प्रोडक्शन करते हैं. तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, और जो चीज़ कम प्रोड्यूस होगी मार्केट में कम आएगी तो उसका भाव बढ़ता है. इसलिए दैट इज़ वन थंब रूल वी कैन से कि जो चीज़ मार्केट में कम है उसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो परचेसिंग पावर डिक्रीजेस. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं चीज़ों के तो हमारे खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, हम उतना नहीं खरीद पाते क्योंकि महंगाई है, सब चीज़ों का भाव बढ़ रहा है. सपोज ऐसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ 5 years बैक 100 रुपीज़ में मैं 3 kgs एप्पल ला सकती थी, बट अब आफ्टर 5 years आई कैन परचेज ओनली 1 kg एप्पल फ्रॉम 100 रुपीज़. तो ये क्या बता रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा परचेसिंग पावर क्या हुआ? कम हो गया ना. पहले मैंने 3 किलो एप्पल खरीदे, अब मैं 1 किलो एप्पल खरीद रही हूँ, तो मेरा परचेसिंग पावर हैज़ डिक्रीज. एंड बिकॉज ऑफ दैट लिविंग स्टैंडर्ड हैज़ डिक्रीज. पहले मैं 3 किलो एप्पल खा सकती थी, अब मैं 1 किलो ही खाऊंगी, तो मीन्स व्हाट? माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ डिक्रीज. नॉट ओनली एडिबल आइटम्स या फ्रूट्स या खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती जा रही है. तो अगर हम ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं मीन्स हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. And this shows what? That the poverty has increased. So all these are the basic reasons of poverty. Now to remove this poverty, what is there? Some strategies have been laid down by the government. Government कुछ ऐसे policies बनाती हैं, कुछ schemes बनाती हैं जिससे वो try करती है कि poverty हटे. Now what is government doing? Now government wants what we say to improve the condition of the rural areas as well as the urban areas. Government tries both कि rural areas में भी poverty हटे as well as urban areas में भी poverty हटे.
गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, बहुत ध्यान दिया इन द अर्बन एरियाज़ कि अर्बन एरियाज़ अगर बढ़ेगा, अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी हटेगी, अर्बन एरियाज़ आगे पहुंचेगा, इकोनॉमी ऑफ द अर्बन एरियाज़ इंक्रीजेस, तो हमारा कंट्री प्रोग्रेस्ड कंट्री माना जाएगा, इज़न्ट इट? बट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि द बेस लाइज इन द विलेज एरियाज़, कि विलेज में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगर विलेज एरियाज़ ही अच्छे होंगे तब जाके हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा। सिर्फ अर्बन एरियाज़ अच्छा हो जाएगा तो प्रोग्रेस होगा? नो, maximum people living in the village areas, their condition should also improve if our country has to progress. So government has to see that the rural areas condition also goes on increasing. Development is also seen in the rural areas or in the village areas. So government ने बहुत सारे ऐसे programs start किए हैं to improve the condition of the rural areas. See, ग्रामोदय से भारत उदय, ग्रामोदय से भारत उदय मीन्स व्हाट, कि भारत उदय होगा, आगे बढ़ेगा इफ आवर विलेज एरियाज इम्प्रूव, कंडीशन ऑफ द विलेज एरियाज इम्प्रूव, देन ओनली पूरा भारत आगे बढ़ेगा. सो दैट्स व्हाई आवर स्टेट गवर्नमेंट, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द रूरल एरियाज एज वेल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव स्टार्टेड विथ गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ रूरल एरियाज में भी एंड अर्बन एरियाज में भी. अब रूरल एरियाज में गरीबी कैसे हटेगी? विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन. गवर्नमेंट हैज लेड एम्फसाइज ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज व्हाट? टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर. पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है. उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स बनाई हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, इज़न्ट पॉलिसीज चेंज की हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो. ओके, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैड सीन, यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे इन द रूरल एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगा, पीपल विल वर्क ओवर देयर एंड दे विल गेट जॉब्स ओवर देयर. बट देन व्हाट हैपेंड? जो इंडस्ट्री सेटअप तो हो गई इन द रूरल एरियाज, बट दोज इंडस्ट्रीज वर अगेन सेटअप बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड बाय द जमींदार्स. तो जो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स पहले से ही रिच थे वो और रिच होते गए, और दे वर क्रिएटिंग सच एनवायरनमेंट दैट पुअर पीपल वर नॉट अर्निंग मच. उनको वेजेस कम से कम दिया जाता था और मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी. गांव में तो गरीब लोग होते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ अपनी डिमांड्स कर सकते हैं, तो उनको वीकेंड से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और पैसा कम. तो what had happened? The rich people became more richer and richer in the rural areas, and the poor people became more poor and poor. So this we can say this was like an optimistic bubbler. Optimistic bubbler मतलब गवर्नमेंट को लगा तो सही कि हाँ ये अच्छा स्कीम है, बट आगे चल के वो अच्छा हो नहीं पाया. इट वॉज अ बबलर. बबल समझते हो कि अच्छा लगता है बट आगे जाके फूट जाता है. तो ये स्कीम्स ऐसी हुई कि अच्छी लग रही थी बट नो इम्प्रूवमेंट वॉज सीन एट द लास्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टैक्सेशन पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी स्टार्ट की जिससे दे वांटेड टू रिमूव पॉवर्टी. नाउ व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू? दे पुट हाई टैक्सेस ऑन द लग्जरियस आइटम्स, इज़न्ट इट? जो प्रोड्यूसर्स लग्जरियस चीज़ें बना रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, या जो कंज्यूमर्स लग्जरियस आइटम्स परचेज कर रहे हैं दे ऑल्सो हैव टू पे हाई टैक्सेस, इज़न्ट इट? कि हाँ, अगर तुमको कार लेनी है तुम ज़्यादा टैक्स पे करोगे, दाल खरीदनी है ज़रूरत की चीज़ है उसके ऊपर टैक्स बहुत मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है. सो दिस इज़ वन वे ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज़ कि गवर्नमेंट लग्जरियस गुड्स के ऊपर हैवी टैक्स लगाती है और जो नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर कम. तो दिस वे it tries to eliminate the differences between the rich and the poor. Then the government has also started fair price shops, and under public distribution system, okay, it has been started giving ration और दाल चावल वगैरह इन शॉप्स पे मिलता है, fair price shops पे, okay, at a very reasonable price, is the lowest market price पे सब चीज़ें गवर्नमेंट देती है किसको? गरीब लोगों को, so that they can fulfill their basic necessities. Okay. Then
जो भी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लग्जरियस आइटम्स ना बना के या कम बनाकर दे इन्वेस्ट मोर इन प्रोड्यूसिंग नेसेसरी कमोडिटीज़, इज़न्ट इट। इसके लिए गवर्नमेंट जो नेसेसरी कमोडिटीज़ बना रहा है उसके ऊपर टैक्स रेट कम होता है, जो लग्जरियस आइटम्स बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स को उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। सपोज आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स कि एक मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, तो अब 2 करोड़ रुपया मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? ईदर आई स्टार्ट अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्स और ईदर आई स्टार्ट अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वी कैन से हनी, माखी मध जिसको बोलते हैं। तो अब अगर मैंने कार का इंडस्ट्री पुटअप किया तो आई हैव टू पे हैवी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और वहीं पे अगर मैंने हनी मैन्युफैक्चर किया तो माय टैक्स रेट विल बी वेरी लेस। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि हाँ मेरा 2 करोड़ है, मैं ज़्यादा टैक्स नहीं पे करूँ, मे बी आई स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी। मेरा एक माइंड आएगा कि चलो हनी स्टार्ट करती हूँ, वहाँ पे टैक्स कम होगा तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा होगा मेरा। सो दिस वे टैक्सेशन पॉलिसी इज बीइंग लेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ अगेन टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, लाइक लैंड सीलिंग एक्ट इज देयर, regulation of tenancy act is there, then security of cultivating right is there, okay, so that there is decrease in the income of rich farmers. Rich farmers हैं, landlords हैं, उनके ज़्यादा इनकम ना बढ़े, the benefit goes to the poor people, poor farmers के पास ज़्यादा से ज़्यादा benefit जाए और उनकी condition अच्छी हो जाए। Okay, now government has also announced so many policies to encourage agriculture, और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कैटल रेयरिंग करना है और डेयरी इंडस्ट्री खोलनी है, फॉरेस्टेशन करना है, पेसिकल्चर करना है। तो ये सब अगर हमको साइड बिजनेस करना है या हमको वो सब बिजनेस करने हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, लाइक हमको छोटी मोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स या पॉलिसीज स्टार्ट करने के लिए लेट डाउन किए हुए हैं। ओके, लाइक व्हाट आर द स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट हमको लोन देगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं तो अगर गांव में खरीदेंगे तो अगेन टैक्सेस विल बी लेस ओवर देयर, शहर में लैंड खरीदेंगे तो टैक्सेस विल बी मोर ओवर देयर, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्सेस कम होते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं तो वो भी हमको कम रेट पे मिलते हैं, isn't it? So all these are the strategies or the policies laid down by the government. गवर्नमेंट ऐसी एजुकेशन भी दे रही है या ट्रेनिंग्स भी देती है जिससे हमारा स्किल बढ़े, ओके, हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़े, नॉट ओनली वी कैन से ओनली द थियोरेटिकल नॉलेज बट प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल का भी आजकल सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पे लोग जाके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें। Now, next is the government to improve the structure of education, health, communication. It has laid down so many things. Now, first of all, irrigation facilities government ने increase कर दी हैं, roads, crop protection, then training, different fields में training है, then variety of crops grow करना है, bank loan लेना है, okay, fertilizers हैं, tractors हैं, okay, these type of things government is giving at a very low rates we can say. Then employment we can say, जैसे गांव में या शहर में लोगों को रोज़गार मिले, इसके लिए गवर्नमेंट खुद वहाँ पे जाकर फैसिलिटीज़ करती हैं। सपोज स्कूल बना दिया गांव में जाकर, तो अगर एक स्कूल बनेगा गांव में तो सो मेनी टीचर्स, प्रिंसिपल विल गेट जॉब्स ओवर देयर, और जब स्कूल बनता रहता है तभी भी लोगों को काम मिलता है, लेबरर्स को काम मिलता है। तो ऐसे स्कूल्स बनाती है, रोड्स बनाती हैं, कैनल्स, इरिगेशन सिस्टम्स, दे ट्राई टू improve the condition of the village as well as people will get the jobs over there. Okay, now लोगों को मोटिवेट करती है गवर्नमेंट टू ज्वाइन सच ट्रेनिंग सेंटर्स, ओके, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ऐसा जाके ट्रेनिंग सेंटर्स में जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो एंड यू अर्न बाय योर ओन। ओके, बहुत बार तो गवर्नमेंट गिव्स पुअर चिल्ड्रन को गिव फ्री एजुकेशन देती है, दैट यू नो, देन स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, देन दे गिव देम रेजिडेंशियल स्कूल्स, जहाँ पे बच्चे जाकर गाँव में से दूर दूर एरियाज़ में जाकर
जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे रेजिडेंशियल भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे रहने की सुविधाएं भी देते हैं बच्चों को, सो दैट दे कैन कम स्टे ओवर देयर एंड स्टडी ऑल्सो. So all such type of facilities are given by the government to reduce poverty in India. Okay, so now all these topics, but it's a big topic. Okay, that is given on page number 135 and 136 of your textbook. So go through all the efforts taken by the government to reduce poverty or the strategies to eradicate poverty. It's big answer that comes in 4 marks or 5 marks. Thank you, beta. Have a nice day.